Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of treatment of goodwill when the new partner is admitted. Still, you have learned about when the new partner admits or enters in the partnership business, he brings his share of goodwill in cash. Now, other terms, when the new partner does not bring his share of goodwill in कैश। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो पार्टनर जो उसके गुडविल का हिस्सा होता है नगद लेकर नहीं आता है, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो उस पार्टनर का जो गुडविल का हिस्सा होता है, उस पार्टनर का ये करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पुराने पार्टनर होते हैं वो उस गुडविल के शेयर को आपस में बांट लेते हैं अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सेम वही प्रोसीजर है इसमें। a new account is opened, that is called a partner's current account. The new partner's current account means the journal entry will be new partner's current account debit to old partner's capital account, to old partner's capital account in their sacrificing ratio. They distribute the goodwill in their sacrificing ratio. We have to go through the practical questions given in your textbook I R Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Just going to explain such numericals or practical questions given in your book. Question number 38 and 39. Both the question are given. Now I would like to read the question, the information given in the question. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share in the profit. C pays in cash rupees 40,000 for his capital. Only rupees 40,000 for his capital. Goodwill of the firm is valued at rupees 25,000. But C is unable to bring his share of goodwill in cash past the necessary journal entries. Now, dear children, now see, when the new partner does not bring his share of goodwill, in cash। मतलब जब ये जो न्यू पार्टनर जिसका एडमिशन होता है बेटा, वह अपने गुडविल के हिस्से को नगद लेकर नहीं आता है, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है और कैलकुलेशन क्या होता है।
इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, आप देखेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग हिज प्रॉफिट 3:2, 3:2 के रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, सी इज एडमिटेड, C is admitted 1/5 share in profit, 1/5 share. He brings capital, C brings capital, C brings capital, brings capital is equal to 40,000, 40,000. Value of the goodwill of the firm, firm's goodwill value, firm's goodwill value rupees 25,000, 25,000. C is unable to bring his share of goodwill in cash. C is unable to bring his share of goodwill in cash. Now we have to calculate the new profit sharing ratio. Sacrificing ratio will be the same. What is the old ratio? Whether no information given. Just I would like to prove this one. Now dear children, first we have to calculate the share of goodwill. C's share of goodwill. C's share of goodwill. C share of goodwill is equal to 25,000 into 1/5 share is equal to 5,000. That will be the 5,000, 5,000 होगा। अब आप सैक्रिफाइस ए करता है कि बी करता है, दोनों कर रहे हैं, ये हम पता करेंगे। तो सर्वप्रथम रिमेनिंग शेयर इक्वल टू remaining share equal to 1 minus 1/5 equal to 4/5। रिमेनिंग शेयर हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए शेयर, ए का शेयर कितना है 4/5 को एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इक्वल टू 4/5 इंटू 3/5 आर इक्वल टू 12/25। बीस न्यू शेयर 4/5 इंटू 2/5 इक्वल टू 4 2 जा 8/25। न्यू रेशियो देखें आप, न्यू रेशियो इक्वल टू 12/25, ये है 8/25 और सी का शेयर है
1/5। एलसीएम आपने ले लिया 25, 12:8:5, 5×5 = 25। अब सेक्रीफाइस निकालते हैं। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? दोनों लोग कर रहे हैं या एक कर रहा है? तो देखें, सेक्रीफाइस इसलिए मैंने प्रूव कर दिया। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर 3/A का 3/5 माइनस 12/25। आप देखें, हो गया 25, 5×5 = 25, 5×3 = 15 माइनस 12 इक्वल टू 3/25। ये प्रूव हो गया। जैसे कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, उसी तरह से इनका बी का ले लीजिए 2/5 माइनस 8/5, 8/25। 25 एलसीएम हो गया 10 माइनस 8 इक्वल टू 2/25। अब आप यहां देखिए, विश्लेषण करें कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है इस तरह का, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। अब क्या करेंगे? जो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा, वो पार्टनर जो है आपस में बांट लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि C is unable to bring his share of goodwill in cash. The first entry will be cash bank account debit, to seize capital, क्योंकि नगद यही लेकर आ रहा है सी। ये पहली एंट्री हो जाएगी 40,000। दूसरी एंट्री क्या होगी? जो शेयर ऑफ गुडविल है बेटा, अब सीज करंट अकाउंट डेबिट, जो दूसरी एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, टू A's capital to B's capital। इस अमाउंट को, गुडविल का अमाउंट जो आया है करंट अकाउंट इनका डेबिट होगा, इनका शेयर ऑफ गुडविल हो रहा है। फर्म की गुडविल 25,000 है और सी का शेयर 1/5 है, तो 25,000 into 1/5 = 5,000। So we can write over here 5,000 will be debited as current account, and this will be distributed amongst the old partners in their sacrificing ratio as the old ratio. Here it has been proved. Now 5,000 3/5 = 2A's capital 3,000 and 2B's capital 2। इस तरह से देखिए एंट्री होगी जब नया पार्टनर अपना गुडविल का जो रकम होता है वो कैश के रूप में नहीं लाता है। ये क्वेश्चन है आपके बुक में,
इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब सेम वे में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूं और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। A, B, C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They admit D into partnership with 1/4 share, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. On D's admission, the goodwill of the firm is valued at ₹6 lakhs. However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. तो अब इनका करंट अकाउंट निकालने के लिए आप वही नियम अपनाएंगे जैसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 1/4 शेयर है which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. 2:1 के रेशियो में है बेटा, तो यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं। देखें ABC 3 पार्टनर है, यहां कैलकुलेट करके हम आपको बता दे रहे हैं उस क्वेश्चन को। ABC 3 पार्टनर हैं, ये मान लो यहां C है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 3:2:1 है। They admit D into partnership 1/4 share which he acquires from A and B. A और B से ही एक्वायर्स कर रहा है 2:1 के रेशियो में। तो D जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर, वो उसका शेयर है, आप देखेंगे 1/4, और जो एक्वायर कर रहा है 2:1 के रेशियो में, किससे? A और B से ही कर रहा है। तो A से कितना शेयर एक्वायर करेगा? 1/4 इसका शेयर है इंटू 2/3 इक्वल टू 2/12। ए से एक्वायर किया और बी से एक्वायर करेगा। ए से ये एक्वायर किया और बी से एक्वायर करेगा आपका 1/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/12। अब ए का नया शेयर निकाल लें, न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर होगा, ए सेक्रीफाइस किया 2/12, पुराना शेयर है 3/6 माइनस 2/12। बी का होगा 2/6 माइनस 1/12। अब यहां पर देखेंगे एलसीएम 12 हो गया, 14 2 3 6 माइनस 2। इनका हो गया शेयर 4/12। इनका जो हो गया 4 माइनस 1, 12 एलसीएम हुआ 3/12। 3/12 न्यू रेशियो हो जाएगा ए, बी, सी और डी का। इनका हो गया शेयर 4/12, 3/12 और सी का 1/6 है ही, और डी का भी आपका 1/4 है। नया रेशियो एलसीएम 12 हो गया 4:3:6 2 जा 12:3। ये न्यू रेशियो हो गया। अब जो गुडविल का अमाउंट है वो सैक्रिफाइस जो ये लोग कर रहे हैं 2/12 और 1/12, इसी रेशियो में उस गुडविल को ये लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इस तरह से आप एंट्री कर देंगे। ये तरीका होता है।
मतलब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसी रेशियो में अब क्या करेंगे, गुडविल 6 लाख रुपए है, 6 लाख है। यहां पर देख लें इस क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का 6 लाख गुडविल है, इसको मिटा दिया हमने। इनका शेयर जो एडमिट किए गए हैं ये 1/4 शेयर है, तो 6 लाख का 1/4, 6 लाख इंटू 1/4, ये शेयर हो गया 1,50,000। अब इस ये चूंकि कैश में नहीं ला रहे हैं तो डीज करेंट अकाउंट डेबिट, डीज करेंट अकाउंट डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट, डीज करेंट अकाउंट डेबिट टू, जो दोनों लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। यहां पर हो गया 1,50,000 और रेशियो आपका इन लोगों का 2:1 का है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसका 2/3 करेंगे। 1,50,000 का 2/3 50, इनका हो जाएगा 1 लाख और इनका हो जाएगा 50,000। यही दो पार्टनर लेंगे, सी नहीं लेंगे क्योंकि सी सेक्रीफाइस करेगा। इस तरह से लगता है बेटा जब पार्टनर लेकर अपना गुडविल का हिस्सा कैश नहीं आते। थैंक यू वेरी मच।